Now visible. So we'll Yeah, okay. mute ourselves and only I'll be talking. Okay. Okay. Yeah. My name is Chandrakant and I've done my schooling from Chandigarh Kendriya Vidyalaya. Thereafter, I did BTech in Computer Science and Engineering, and my aim is to build an organization. Here in real estate industry, I have started as a agent. I'm an associate in ANI and my registered RERA number is like visible on the screen. And whoever like join the company will get the code like this. So to access the CRM, the code is used, and to access the information in real estate industry like projects and all, I'll continue with it and I'll take it in the end of the like session. Let's start with the topic real estate. Why real estate? Real estate is the best place to invest, and government is focusing on the real estate revenue and jobs. It's the second largest industry in India, and passive income the customer can generate rent, and appreciation by Bhutani is 20% given by Bhutani. They are providing 20% appreciation, and we are converting problems into opportunities. And you can go to some reliable sources like Google and LinkedIn. You can search it out, like all the information will be available to you. And next, we'll start with income distribution. We'll straightforward go to the point income. There are two ways to achieve sales. Like one can achieve sales directly or indirectly. So direct sale will be like my sale, I do myself. And if I have a team of some members, like 6 members, so anyone from my team is doing, it will be an indirect sale for me. The commission, the income will be based on the commission and it will be 45% at the beginning. And when you get the promotion, how will you get the promotion? You will be able to achieve BDM 55%, and you need to do 5 sales, 7 mandatory trainings within 90 days criteria, and refer at least 4 team members. So I'll continue, like I'll take this concept BDM. This picture shows like I've posted some BDM, BDE, BDM. So it will be like chain, and it will be each chain, like we'll start with direct sale from here. So it will be BDE getting 45%, BDM getting 55% on direct sale, and BDE getting 45% on direct sale. And this chain goes like above one is as well BDE. So on the sale of these levels, third level, they'll get a differential income. Up to 50% differential income can be achieved, or more than it can be achieved. Like 5% for the same level, 5% for the same level. This is BDM, this is BDM. So 5% for the same level, and 10% from BDE. Like this one is BDM and he is BDE, so he will get 10% for it. Likewise, whatever these two have achieved and earned, so out of it, like if he is not doing anything, but he is not doing anything, but he can earn 5% on 10% based on these two sales, like these 2% sale. Got it? So what we started with the income distribution.
and how we will get the promotion from BDE to BDM. And again, we'll take the same like direct and differential income. There are two type of income. Let's start with the like builder pays to ANI. Let's take it 5% of the 50 lakh. One property will be costing 50 lakh residential. So 5% of it will be 2.5 lakh. This will be given this will be payment to the ANI, our company. And whoever someone is doing direct income, direct sale. So at BDE level, he's getting 45% of 2.5 lakh. This will come out to be around 1 lakh. And I've taken like what percentage of it will be a differential income. Like suppose I have a team of 6 members and one is BD, 5% from BD, 10% from BDM, 5%, 5% from BD, 3 BDs, and then one is BDM, 10%. So from 6 members, I got 40% differential income, and 40% of like this is 40K. You'll get differential. You have not done any sale, nothing you have done, and you are getting from the team 40K for these sales. How is it happening? Like earnings based on direct sales. Earnings depend upon how many numbers of sale do you have. Like how many numbers of sales have you done? So depending upon the size of the sale and as many as number of sale you will do, will it generate your income. And for residential, if you do 2 sale of like 50 lakhs, 2 sales will generate your 1 lakh income. And on 25 lakh, you will get 22,000 at around. And on 2 sales, you will get 1 lakh of residential. And commission will be released as per the customer choose a payment as per the plan. So there are different level of plans, payment plans. Whenever the customer choose some plan, according to that, the payment will be released. So it's a kind of business, like you have done few sales in, like you have targeted for 3 months or 4 months or six months, and you have earned a little with the like all year have been done, like पूरे साल का हमारा income हो गया. यहाँ पे प्रमोशंस भी हैं. प्रमोशंस हमारी 5% आपको सेम लेवल पे मिलता है, जो मैंने पहले भी बताया था. एंड 45% से आपकी बिगनिंग होती है. आप एनी टाइम 5 सेल कर देंगे, आप बीडीएम बन जाएंगे, 55% हो जाएगा. देन आप 20 सेल कर देंगे, 20 सेल के बाद आप जीएम बन जाएंगे, 65% आपको मिलेगा. ऐसे एवीपी, वीपी, एसवीपी, प्रेसिडेंट तक जाता है, 75, 85, 90 एंड 95. तो आप के पास अपॉर्चुनिटी है, आप ज्वाइन करके प्रमोशंस भी ले सकते हैं. एंड एनी टाइम सेल्स हैं. सेल करनी किसकी है, क्या हमें सेल करना है? रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट हैं, स्टूडियोज हैं, आईटीईएस ऑफिसेस हैं. एक नई प्रोडक्ट हमारे पास आया है, को वर्किंग स्पेसेस का. को वर्किंग स्पेसेस होते क्या है एंड व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट? लाइक फ्लेक्सिबल स्पेसेस हैं, मल्टीपल यूनिट्स कैन बी सोल्ड और परचेज, स्मॉलेस्ट रेरा इन्वेस्टमेंट है एंड रजिस्टर्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, हाई एश्योर्ड रेंटर मिलता है, बाय भूटानी से मिल रहा है, and demand increasing by the market. According to the market, demand is increasing. आपको मैं इस मीटिंग को छोड़ना चाह रहा हूँ तो कैसे करूँ? कहाँ जाना पड़ेगा? देखिए ऊपर से डिलीट कहाँ? लीव का ऑप्शन. अच्छा लीव करूँ है?
So where were we? Like demand increasing for the office spaces. लाइक हमारे जो नोएडा में प्रोजेक्ट्स हैं, जिस जिस लोकेशन पे प्रोजेक्ट हैं, लोग इन्वेस्ट इसीलिए करने आते हैं कि उनको रिटर्न्स चाहिए होते हैं, हाई रिटर्न्स उनको मिलेंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा टॉपिक हमारा, सबसे बड़ा पॉइंट हमारा यही है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा लोकेशन है, एंड देन उसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें, उस बेसिस पे क्लाइंट हमारे पास आएगा, हमारे पास नॉलेज होगी, हम उसे प्रोवाइड करेंगे, एंड देन जो उसका बजट होगा उसके अकॉर्डिंगली वो हमसे परचेज करके जाएगा। Then we have the product, like in AlphaThumb, we have Ultima Pod, and features of Ultima Pods are being provided on the screen. It is a co-working spaces, fully furnished, ready to move है, and A grade commercial building, international standard की है, iconic rooftop infinity pool बन रहा है, swimming pool, world largest. And it is costing you 12 lakh for the one unit and 67 square feet है। तो मिनिमम 2 पॉड्स कोई लेता है तो 25 lakhs मिनिमम 2 ही जा रहे हैं, 2 ही कर दिए हैं, 2 ही लेने हैं कस्टमर को। सो उसे 2 से कम नहीं दे रहे। तो 25 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, एंड उसमें अपफ्रंट मिल रहा है 3.5 इयर्स का, जो इतना 5,62,800 कुछ उसमें से डिडक्ट हो जाता है स्टार्टिंग की पेमेंट में से, जो 12% के दौर पे लगता है, एट द रेट 12% पर एनम से लगता है, तो वो स्टार्टिंग में ही हम दे देते हैं। एंड आप देख सकते हो इसमें कोवर्किंग स्पेसेस में और क्या चीजें हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये ई टावर है। नेक्स्ट स्लाइड पे ये थोड़ा जूम करके पिक्चर आ जाएगी। एंड गूगल पे आप सर्च कर सकते हो को वर्किंग स्पेसेस इन नोएडा, लाइक रेंटल ऑफ को वर्किंग स्पेसेस। सो आपको कुछ वेबसाइट आएंगी, रेगस एंड ऑल करके, तो उन पे प्राइसेस लगे हैं, पर डे पे रेंटल मिलता है। तो जो रेंटल कंपनी ने रेगस पे लगाया रहेगा, उसको हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये 60 AR आ जाता है, एनुअल रिटर्न, जो हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। और वहां पे 140 अराउंड पे जाएगा, वो 160 पे जाएगा। 140 अभी करंट चल रहा है लीज रेंट का प्राइस, एंड 160 हो सकता है। तो हमने ये गारंटी दे दी कि 60 तो हम दे ही रहे हैं, तो 160 में से 60 गया 100 will be distributed among client and builder 75-25% basis. So ये जो प्रॉफिट हो रहा है उसका, उस स्पेस का, वो 135 तक रीच हो जाएगा। 135 into 67 जो उसका साइज था स्क्वायर फीट, ये will give you the per month rental. So इतना रेंटल उसका आ सकता है। एश्योर्ड तो इतना रहेगा, 8040 एश्योर्ड रहेगा पर पॉट पे। उसने 2 परचेज किए, तो जो कैलकुलेशन आ रही है मार्केट की वैल्यू के हिसाब से, वो 9045 आ रही है। तो 2 पॉट पे वो 18,000 अराउंड कुछ मिलेगा उसे। सो कॉस्ट कितना कर रहा है, 25,000 कॉस्ट, 25 लाख कॉस्ट कर रहा है, और 18,000 उसे रेंट आ रहा है। तो ऐसी भी प्रॉपर्टी मिलेगी जो, जहाँ पे मतलब 25 लाख में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है और 18,000 उसमें से आपको रेंटल आ रहा हो। ये है मार्केट की वैल्यू के साथ, एंड ये है जितना बिल्डर 60 के दौर पे 8040 देगा ही देगा। अगर चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा डॉक्यूमेंट बनेगा 1 to 1, लाइक ऑल द थिंग्स विल बी रिटर्न ओवर देयर, इतना तो वो देगा ही देगा। 2 परचेज अगर कोई कर रहा, तो देन पॉसिबिलिटीज हैं उसको, उसका डबल भी आ सकता है। देन हमारी जो सेल पिच होगी, हमारा कस्टमर 50-50% प्लान में जाएगा। 60 डेज में सेकंड जो है वो कंप्लीट करनी है, और विद इन 30 डेज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है।
तो ये जो प्राइसेस जो चेंज हो गए हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मोर पॉइंट्स हैं प्रोजेक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए, एरिया, लोकेशन, ग्रोथ, एमिनिटीज, इस चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं। अदर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। डेवलपमेंट इन नोएडा के बारे में बात कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे हो रहा है, ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। एंड नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे जो हमारे ऑलरेडी कंपनीज आई हुई हैं, जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल नोएडा से, जो डेवलपमेंट है। फिर इसमें एक होता है पेमेंट प्लान। तो पेमेंट प्लान होता है 50-50 पे जा सकता है, डाउन पेमेंट पे जा सकता है कस्टमर। एंड बीएसपी इसमें डिस्काउंट इफ एनी उसमें आ जाता है। जो बीएसपी होता है वो पर स्क्वायर फीट पे लगता है। एंड जो पेमेंट प्लान होता है वो डाउन पेमेंट भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है। देन अदर चार्जेस होते हैं हमारे जो उसमें बीएसपी के साथ प्लस हो जाते हैं। एंड रजिस्ट्री, जीएसटी के साथ टोटल उसका पूरा प्लान बनता है। सो जो पेमेंट प्लान होता है वो कस्टमर को चूज करना होता है किस पेमेंट प्लान पे जाना चाहता है, और डिपेंड करता है कि वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। ये अदर चार्जेस हर किसी पे नहीं लगते हैं। और इसमें से भी कार पार्किंग अगर उसे नहीं लेना है, या पावर बैंक बैकअप, और कितनी इन्वेंट्री में 250 से ऊपर जो स्क्वायर फीट होते हैं उसमें पावर बैकअप एंड IFMS चार्जेस लगते हैं। देन कॉर्नर पीएलसी, ये सारी पीएलसी होती हैं जो एक्स्ट्रा चार्जेस, अदर चार्जेस होते हैं, मेंटेनेंस लगता है। तो वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के किस पे क्या अदर चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे। जीएसटी तो लगनी लगनी है, रजिस्ट्री तो लगनी लगनी है। एंड देन वी हैव लेटेस्ट प्रोडक्ट इन अल्फाथम, साइबरथम। दो प्रोजेक्ट हैं हमारे, अल्फाथम एंड साइबरथम इन भूटानी, जो फुली कमर्शियल में डील करते हैं हम। एंड इसमें हमारा 6.99 लाख से स्टार्ट हो जाता है हमारा। वर्चुअल स्पेसेस हैं अल्टीमा पोर्ट्स, 67 स्क्वायर फीट के हैं सारे। और इसमें 60 मिल रहा है, इसमें 70 मिल रहा है। लीज रेंट बता रखा है मैंने। एंड नंबर ऑफ यूनिट अगर परचेज करता है, 2 मैंडेटरी है तो 25 लाख रख रहा है। वन का ये 9.5 लाख है, एंड ये 7.99 लाख है। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट है, 150 अराउंड मिल रहा है। तो इसमें 9.5 लगा के 9.5 मतलब 9,500 मिल जाता है। 9,50,000 लगा रहा है कोई, और उसमें 150 पर स्क्वायर फीट पे AR मिल रहा है। तो वो 9,500 हो जाता है। इसी तरीके से हमारे और भी प्रोडक्ट्स हैं इन भूटानी। ये साइबरथम में है, ये अल्फाथम में है। ये अल्फाथम के अल्टीमा पॉड्स हैं। और इसमें मैंने AR बता रखा है कि 67 स्क्वायर फीट पे 60 मिल रहा है, 70 मिल रहा है। और इसमें लीज रेंट पर यूनिट पे कितना मिल रहा है, 4020 मिल रहा है। और इसमें 4690 मिल रहा है। ये कॉस्टिंग पड़ रहे हैं हमारे 699 से 799 लाख तक। और इसका BSP निकालो तो इतना आ जाता है। ई टावर में है ये। एंड देन ये जो है ये सी टावर में है, रेडी टू मूव है। एंड फ्रंट में एक यूनिट का कॉस्ट 12.5 लाख पड़ता है, BSP इतना है। इसी तरीके से 25 लाख के ये बोल्ट जोन पड़ रहे हैं। इसमें आप कंपेयर करोगे तो 25 लगा के 13,500 आ रहा है। एंड BSP इसका 169900 है। इसी तरीके से यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट है जो मैंने पिछली बार बताया था। अभी ये इसमें 9,500 रेंटल मिल रहा है, वो कॉस्ट कर रहा है 9,5,000 का, 50,000 का। एंड इसका स्पेस है 250 स्क्वायर फीट के, ये लीजिबल लॉकेबल ऑफिस स्पेसेस है। इसमें 10,000 मिल जाता है, 15 लाख लगा के, और 40 के AR पे मिल रहा है। एंड इसका BSP 5990 है। तो ये साइबरथम का बताया था मैंने, ये अल्फाथम का है। ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। इसमें इसके बारे में मैं बात करता हूँ।
ये कुछ सेल्स एंड स्किल्स एक्सपीरियंस होने चाहिए, लाइक ये सारी चीजें होंगी तो आप लाइक और डिटेल में बात कर पाओगे, बैंक एंड रिटेल को कंपेयर कर पाओगे, स्पीक ऑन लाइक इन्फ्लेशन के बारे में बात कर पाओगे, देन मार्केट गाइड कर पाओगे कस्टमर को अकॉर्डिंग टू द मार्केट एंड हिज रिक्वायरमेंट, एंड प्रॉपर सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बता पाओगे जो नोएडा में हो रही है ऑलरेडी। तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन पे आते हैं, हम अभी डिटेल में जाएंगे, सीआरएम के बारे में बात करेंगे, एंड नॉलेज कैसे गेन कर सकता है या ऑलरेडी है, तो सीनियर्स को फॉलो करके एंड लर्न करके ये सारी चीजें हैं। एंड ये हमारा प्रोजेक्ट है, जिस जो प्राइसेस हमारे बड़े हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये उसका ऐड है। 2 अल्टीमा पॉड्स मैंडेटरी हैं, 25 lakhs के पड़ रहे हैं, न्यू प्राइस है ये हमारा प्रोजेक्ट है अल्फाथम। ऊपर रूफ ऑफ इंफिनिटी पूल बन रहा है, भूटानी का प्रोजेक्ट है, एंड ये सी टावर है एबीसी। अल्फाथम के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। 67 स्क्वायर फीट का जो मैंने बताया था कोवर्किंग स्पेसेस, ये इमेज लगी है ई टावर की। ओसी रिसीव्ड है, मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट है, लेटेस्ट इंफिनिटी पूल बन रहा है, हाई राइज टावर्स हैं, वॉकवे बन रहे हैं विद फॉर द कनेक्टिविटी विद द बिल्डर्स एंड स्काई गार्डन्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ऑटोमेटेड पार्क सिस्टम है ना। एंड ये कंपनीज जितनी भी हैं, HCL, इंडिया मार्ट, टेक महिंद्रा, बिरला सॉफ्ट, TCS, ये सारी विसिनिटी में है, उसी एरिया में ही है। और ये थोड़ा प्रोजेक्ट का लेआउट है, ये ई टावर है। देन इस तरीके से दिखता है हमारा ABC टावर, ई टावर ये है। ये थोड़ा पुराना फोटो है, एंड अभी कंस्ट्रक्शन और पीक पे है। देन हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है साइबरथम, नोएडा में ही है, एंड 26 एकड़ का है, 140 सेक्टर में है, 140A। ये 2 टावर बन रहे हैं, स्काई मॉल बन रहा है, 50 फ्लोर का एक टावर है, एंड इसमें कमर्शियल, हाई स्ट्रीट, रिटेल्स, ऑफिस स्पेसेस, एंड देन को-वर्किंग स्पेसेस, ऑफिस स्पेसेस, टॉप 50 फ्लोर तक, 43rd फ्लोर, ये सारे अवेलेबल है। ग्राउंड फ्लोर पे आपका रिटेल, हाई स्ट्रीट रिटेल्स आ जाता है। ग्राउंड, अपर ग्राउंड के प्राइसेस अलग है। देन वी हैव द लोकेशन हमारा ये 140 है, ये महामाया से जा रहा है, एंड वन 140 अराउंड, लाइक ये 137 का मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे साइबरथम है, इसी के पास ही सामने अल्फाथम है। देन अदर प्रोजेक्ट है हमारे डिलीवर्ड जो है, ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है भूटानी के, वर्ल्ड स्क्वायर मॉल है, आइथम है। ये वर्ल्ड स्क्वायर मॉल हमारा गाजियाबाद में है, एंड आइथम हमारा नोएडा में है। ये ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है भूटानी के, बाय भूटानी। देन आ जाता है नोएडा के कुछ बिगेस्ट पॉइंट हमें पता होने चाहिए, ठीक है। स्टार्टअप हब, 3rd बिगेस्ट स्टार्टअप हब बताया है नोएडा को, एंड ये कुछ 10 पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक हब है, टॉय सिटी है, 1000 एकड़ की फिल्म सिटी बन रही है, रनवे, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, योगी आदित्यनाथ का जो डेवलपमेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंगली, लाइक कमर्शियल इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, पूरा रेजिडेंशियल एंड ये डेवलपमेंट हो रहा है एजुकेशनल का, एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, सेक्टर्स डेवलप हुए हैं। जो सेक्टर्स हमारे डेवलप हो रहे हैं उसमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटी एंड जो भी है, 9 होल गोल गोल्फ कोर्स, एंड लाइक पार्क्स बन रहे हैं, शहीद भगत सिंह पार्क। तो 150 सेक्टर का मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे गोदरेज से लेके जितने भी टाटा, एवरी प्रोजेक्ट इज अवेलेबल इन 150 सेक्टर में। देन अदर पार्ट ऑफ द नोएडा में भी हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उसमें आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें जो हमें मिलती है नोएडा में एज अ फैसिलिटी, एज अ लाइक एमिनिटीज हम कह सकते हैं हमारी सोसाइटी में जो होती हैं। एंड ये है नोएडा के बारे में।
तो हमें मीन्स कोई भी चीज़ करने से पहले, लाइक नोएडा का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो करने से पहले जो हमें हमारे नोएडा के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में, ये चीज़ें मिलेंगी, वही चीज़ें हमें बताएंगे कस्टमर को कि कस्टमर उन सारी चीज़ों पे, लाइक एमिनिटीज और उन सारी चीज़ों पे कस्टमर आएगा। एंड देन हमारे जो और भी प्रोजेक्ट्स हैं, 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं नोएडा सिटी एनसीआर में हैं। रेडी टू मूव सोसाइटीज़ हैं, टाटा के प्रोडक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट हैं, एटीएस गोदरेज, महाकुंड मिशिगन, सीआरसी गोदरेज, गौर। अभी नया प्रोजेक्ट हमारा गौर का चार मूर्ति पे आया है। चार मूर्ति पे हमारा जो गौर का वर्ल्ड स्क्वायर मॉल है उसमें ही स्टूडियोज अवेलेबल है। फाइनली सेल कैसे करनी है, जो पिच होनी चाहिए हमारी, कॉलिंग टू सेल, नॉलेज ऑफ सिटी होनी चाहिए, देन लीड जनरेशन हमें आना चाहिए, साइट विजिट हमें कैसे करनी है, मीटिंग्स कैसे करनी है, फॉलोअप्स कैसे करनी है, स्किल्स में ये नेगोशिएशन, प्रोजेक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी चीजें, सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। 7 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, 3 PM ऑनवर्ड, और ऑफिस में होगी सब। ऑफिस का एड्रेस ये रहा, एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। ये हमारी वेबसाइट है। It is over. So